Is the 21st January, Saturday, and we are going to the MCQs of the uterine fibroid or leiomyoma or whatever the picture. See, in front of you, the picture is there. The one which is we are talking different type ना. So all those pictures are there. Some mucosa, okay, mucosa layer पे होगा, intramural in the मायोमेट्रियल की साइड पे होगा और एंडोमेट्रियल के साइड पे होगा. ये सब सिरोजल तो बिल्कुल बाहर ही होता है. सिरोजल इट्स इज आउटसाइड, ओके, एंड द सर्वाइकल फाइब्राइड्स आर आल्सो देयर. सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग. ओके जी, चले आप एमसीक्यू शुरू कीजिएगा प्लीज़. जी. What is the most common type of uterine fibroid? A. Submucosal, B. Intramural, C. Subserosal, and D. Cervical fibroids. The intramural fibroids are the most common type. एंट्रोम्यूरल. जी. ये देख ही लेते हैं. ये वाला है, इसका आंसर है 1. 1 का बी है. ओके जी, सही है. ये 1 का जो है ना, ये भी है एंट्रोम्यूरल. अभी हमने करा था ना. थोड़े इसको मैं ज़रा रेड वेड कर दूँ. चलें, बाद में कर दूँगी. सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा. मैं होम पे जाके इसको ज़रा रेड रेड कर दूँ, साथ के साथ ही रहे. सॉरी, ये नहीं आने को. अभी ये गुस्से में. ओके, सबसे रोज़ा. चले, आपने बता दिया ना. इस ओके एसी. ओके, चले, आपने बता दिया, बिल्कुल सही है. चले आगे चलिए, सेकंड कीजिएगा प्लीज़. Which of the following is a common symptom of uterine fibroid? A. Frequent urination. B. Excessive weight loss. C. Hair loss. D. Skin rash. इसका है A. Frequent urination. हाँ, देखिए, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्राइड. देखिए, इसमें तो हमने कहा था ना वो कि क्योंकि वो करेगा, वेट लॉस थोड़ी होगा, हेयर थोड़ी होगा, स्किन जी. राइस थोड़ी होगा. वो जो मैंने बताया था, प्रेशर सिम्टम होगा ना. ठीक है, ओके जी, जी. बिल्कुल. थर्ड कर लीजिए So, प्लीज़. which imaging test is commonly used to diagnose uterine fibroids? A. X-ray. B. Ultrasound. C. Electrocardiogram. And D. Colonoscopy. B. Ultrasound. याद हो गया ना आपको. चलिए, ये तो आसान जी. आसान है. What थोड़े is मुश्किल नीचे जी. है. फोर्थ कीजिएगा. जी. What is the most common reason for hysterectomy? Surgical removal of the uterus worldwide. A. Endometriosis. B. Uterine fibroid. C. Ovarian cyst. And D. Cervical cancer. Uterine fibroids. जी, बिल्कुल सही कह रही है. यही होता है ज़्यादातर. देख लिए, फोर्थ का बी है, वही है. सही कह रही जी. हैं. ओके, चले, पाँचवा कर ली. Fifth, which of the following is a risk factor for developing uterine fibroids? Being underweight, B. High intake of fruits and vegetables, C. African American ethnicity, and D. Frequent exercise. इसमें अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी. बस ये याद रखिए, जहाँ पर कालों का आ जाएगा वो इसको हो जाएगा. गोरों का जी, कम जी, होता है जी. 70, जी. कालों का 80% होता है. ठीक है जी. जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. डॉक्टर साहब ये जी. लव करते हैं इस क्वेश्चन को. सही. ओके, छठा. What does multiparity refer in relation to uterine fibroids? The number of pregnancies a woman has had. B. The size of the fibroid. C. The location of the fibroid. D. The type of fibroids. देखिए, पहले Number क्वेश्चन of को समझे क्या है. pregnancies. What does multiparity refer in relation to uterine fibroid? Uterine fibroid से To uterine multiparity fibroids. से क्या होगा इसका? The number of pregnancy a woman who had. The size of the fibroid, the location of the fibroid, the type of the number of pregnancy होगा. डॉक्टर साहब यही होना चाहिए. अब देख भी लेते हैं. भारत 6 है. हाँ जी, यही है. आपने बिल्कुल सही जी. कहा. ठीक है जी. इसको हम एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज़. ओके, हाँ, 7 पे आ जाइए प्लीज़. G. Which of the following is not a potential complication of uterine fibroid during pregnancy? A. Preterm labor. B. Malpresentation of fetus. C. Fetal macrosomia. And D. Postpartum hemorrhage. C. Fetal macrosomia. बिल्कुल सही है. आगे 8. Which of the following is a treatment option for uterine fibroids? A. Hysterectomy. B. Myomectomy. C. Uterine embolization. And D. All of above. All of above. सही है बिल्कुल. आगे 9th. What is the typical age range when uterine fibroids are most frequently diagnosed? A. Childhood. B. Adolescence. C. Reproductive years. And D. Postmenopausal. C. Reproductive years. रिप्रोडक्टिव एज में होता है ना ज़्यादातर. पोस्ट जी. मिनोपाजल में क्या होता है, याद है आपको? रिग्रेस हो Shrink कर जाता है. देता ना. हाँ, श्रिंक कर जाते हैं या जी. ख़त्म हो जाते हैं. चलिए 10th कर लीजिए प्लीज़. What is the role of hormones in the development of uterine fibroids?
They have no role. They inhibit fibroid growth. They promote fibroid growth. They cause fibroid to shrink. हम्म इसका C है. They promote fibroid growth. तो यही है ना, मोस्ट द रोल जी ऑफ हार्मोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन फाइबर। आपको हमने किया था ना, दो हार्मोन थे, जी जी बिल्कुल. वो करते ना, तो ये आसान आसान हो गया, मतलब थोड़ी सी एक एपेटाइज़र जो हम सूप पीते हैं ना खाने से पहले, वो हमने जी पी लिया, सूप पी लिया। अब ज़रा आ जाए थोड़ी मुश्किल पे, ये पढ़ लीजिए, विच जी. ऑफ द फॉलोइंग। Which of the following should be given to prevent the adverse effects of long-term GnRH agonist used in the treatment of uterine fibroids? A. Danazol. B. Supplement estrogen. C. Raloxifene. And D. Tranexamic acid. Estrogen supplement और estrogen देते हैं इसमें. लेकिन डॉक्टर साहब पता है क्या, ये क्यों आया है? अच्छा पहले पूरा पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। Supplemental estrogen. This therapy should be given to prevent bone demineralization when GnRH agonists are used long term. A, C, and D. These therapies have varying effects on bleeding and shrinkage of fibroids. अच्छा अब देखें ज़रा, सॉरी एक सेकंड, 1 मिनट। अब हम इसको देखें, गौर से देखें। अब हमारा सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग should be given to prevent the adverse effect of the long term gonadotrophic। so please आप अपने दिमाग में ये याद रखिए, मैंने भी आपको बताया था, फिर भी आप इसको दोबारा जी याद जी. कर लें कि जब भी हम GnRH देते हैं ना, GnRH लॉन्ग टर्म होता है, वो बोन मिनरलाइजेशन करता है, ठीक है। उस अफेक्ट को हमने ख़त्म करने के लिए हमने क्या देते हैं, HRT देते हैं। अब इसने हमें सप्लीमेंट में खाली एस्ट्रोजन लिखा है, क्योंकि उसका यूट्रस है, अभी फाइब्राइड है तो यूट्रस है ना, जी जी. ठीक है ना। जी तो यूट्रस में हम दोबारा तो उसको प्रोजेस्ट्रॉन नहीं देंगे ना, तो हम उसको जी ईस्ट्रोजिन की अभी ज़रूरत है तो हम ईस्ट्रोजिन देंगे, इसलिए ये ईस्ट्रोजिन जी. आएगा। डेनोजोल नहीं आता है, डेनोजोल जो होता है ना आजकल यूज़ में भी नहीं है, ये वाला इसके लिए नहीं है, ठीक है। और रेलॉक्सिफिन जी और ये ट्रेमेनेक्सिक एसिड, ये तो छोटे मोटे बेचारे बच्चे हैं, ठीक है। जी जी. ओके चलिए दूसरा कीजिएगा। Which of the following procedure is done if a woman with uterine fibroids wants to keep her uterus or become pregnant? A. Cryotherapy. B. Myomectomy. C. Magnetic resonance guided focus ultrasound surgery. And D. Radio frequency ablation. B. Myomectomy. वही आएगा ना जो अभी हमने पढ़ा था कि भाई उसको जी जी माइमेक्टमी में बिल्कुल. चाहिए होता है। और ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड सर्जरी है ना डॉक्टर साहब, जो हम कह रहे थे कि अब ये न्यू जी रिसेंट है, ये जी जदीद बिल्कुल. वाली आई है और ये अभी इतने यूज़ बिल्कुल. में नहीं है। मायोमेक्टमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जी पढ़ लीजिए। जी. Myomectomy. Women desire pregnancy or want to keep their uterus. Myomectomy is done A, C, and D. These are newer procedures whose efficacy in restoring fertility has not been evaluated. समझ आ गई ना बात आपको, जी कि बिल्कुल नहीं है बिल्कुल. इनको लिफ्ट कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, जी जी. आगे चलिएगा। Which of the following is the potential disadvantages of the newer procedures known as uterine artery embolization? A. Complication rates are higher than in myomectomy. B. Endometrial hyperplasia is more likely. C. Menstrual cycles are disrupted or discontinued. D. Recovery is longer compared with myomectomy. A. Complication rates are higher than in myomectomy. देखिए डॉक्टर साहब, होगी ना, Complication हमने rate is जी की थी ना, आपको याद है ना, हमने की थी। जी बिल्कुल. हाँ जी बिल्कुल. पढ़ लीजिए ये। Com- Complication rates are higher than myomectomy or hysterectomy, and treatment failure rates are 23%. This is not correct. बी C. बी Changes बी in menstrual नॉट cycle may करेक्ट, affect. बी नॉट करेक्ट, B. एंडोमेटर। This is not correct. जी जी. हाँ, And C is changes in menstrual cycle may occur, uh, which may, C. Changes in menstrual cycle may occur, which many patients could not consider a disadvantage. The recovery is faster than with uterine artery embolization, but complication rates are higher. ओके, हो गया ना, ठीक है। जी जी जी. अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आगे कर लीजिए। The following statements refer to uterine fibroids. Leiomyomata determine which are true. Uterine fibroids are benign tumors of myometrium present in 25% of women. B. Uterine fibroids are more common in Caucasian women, those with a family history, Paris women, and those using combined oral contraceptive pills or injectable progesterone. हम्म
25% are asymptomatic. Around 1% of fibroids are leiomyosarcomata, which may result in malignant changes. ई G. E. Complication of fibroids in pregnancy include preterm labor, malpresentation, transverse lie, obstructed labor, pain related to red degeneration, and postpartum hemorrhage, and none of above. देखिए डॉक्टर ये साहब ये वाला बहुत, सही है। हाँ जी देखिए ए वाला बहुत सही है ना, क्यों और सही ए है? वाला जब बेनाइन है ना, हमने रट्टा मारा था, जी जी और benign ये tumors गोरियों are में तो होता controlled. नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। चाहे हमें कुछ ना आता हो, जी हमें कख ना आता हो, वी डोंट नो एनीथिंग जी आफ्टर उसकी बला बला जो लिखी है, हमें तो बस ये जैसे ही उसने जी कस्कियन का कहा ना, हमारा हमारा जी आंसर हमें पता था गोरियों को नहीं होता इतना कॉमन, कालियों को जी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये जी कह रहा है कि ये 25% आर एसिम्टोमेटिक, तो डॉक्टर साहब आपको याद है हमने जी कहा था मेजॉरिटी आर एसिम्टोमेटिक, मेजॉरिटी मेजॉरिटी 25% बिल्कुल मेजॉरिटी थोड़ी होती है, ठीक है ना? जी जी तो मुझे जैसे को तो जी याद नहीं होते ये, आई डोंट रिमेंबर द फिगर्स। सो आपको रिमेंबर भी नहीं, अगर आपको रहते हैं तो बराबर दिमाग में ये याद रखिएगा भाई मेजॉरिटी आर एसिम्टोमेटिक, तो मेजॉरिटी 25% थोड़ी होगा, ठीक है ना? जी 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 हाँ जी, 1% ऑफ फाइब्राइड और लियो मायोसार्कोमा एंड मे रिजल्ट इन मेलिग्नेंट चेंजेस। डॉक्टर साहब 1% तो ये नहीं था ना, पॉइंट जीरो में था पॉइंट ना? टू एट हाँ, पॉइंट में था जी ना वो। तो ये ऐसे याद कर ये लीजिएगा कि 0.28 सार्कोमा जो है ना जी वो पॉइंट में है, जी ठीक है? और ई तो पता ही है ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा। ये तो करेक्ट है तो जी एफ तो आएगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव तो श्योर हुआ है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन भी है, लिखिए आप चाहें तो पढ़ लीजिए। endometrial the correct answer are A and E. Answer B is wrong. Common in Afro-Caribbean and less common in Paris women. Number C is false because 50% are asymptomatic and discovered only on pelvic or abdominal examination. Menorrhagia occurs in 30%. Answer D is false. The correct percentage is 0.1% to 0.2. ठीक है, ये प्लीज़ अगर आपको जी नहीं भी कहीं से ये फिगर मिल रहे हैं, वो नहीं आपको याद हो रहे, तो प्लीज़ यहाँ से फिगर जी ले लीजिएगा, ठीक है? जी वही है फिगर, वही नहीं है, चेंज नहीं है, मगर उसकी जी चीज़ें वही हैं। तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अभी हमने कहा था कि एसिम्टोमेटिक तो 25% हो ही नहीं सकते, मेजॉरिटी जो होती है जी ना, तो मेजॉरिटी इसने क्या कहा है 50%, जी ओके? 50% एसिम्टोमेटिक होते हैं। चलें आगे ये कर जी लीजिए। Endometrial carcinoma is now the most common genital tract cancer. Identify the statements which are true. Prevalence is highest at age 60 and only 50% cases डॉक्टर साहब ये रहने occurring दीजिए, फाइब्राइड से तो कंसर्न नहीं है इसका। endometrial carcinoma वाला हाँ जी ओके, रहने दे, ठीक इसको छोड़िए, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह जी शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह वी अंडरस्टैंड हो गया। यू नो जी डॉक्टर,